Hello my dear students, this is Swati Chawla. Welcome to my series for CBSE Class 9 Information Technology, subject code 402. In this video, we are going to discuss the part 2 of session 2, that is various functions used in OpenOffice Calc. In this video, we are going to discuss these functions: average, sum, max, min, if, count, max a, min a, like this. First of all, we will discuss what are functions. Functions are predefined formulas that perform calculations. बेटा अगर आप एक्सेल जो आपका ओपन ऑफिस कैल्सी है, the main purpose to use the open office calc is that it makes very easy to perform the complex calculations. If I want to perform very complex or difficult calculations, Excel provides the solution to me for that. In OpenOffice Calc, we are having so many inbuilt functions, but here we will cover only those functions which are in your curriculum. Functions की definition, it is the predefined formulas that perform calculations by using specific values. कि किसी भी वैल्यू को लेकर if you want to perform some calculations, then we use functions. And the syntax for function is function name. I have written the spelling here incorrect. It's function name, then the list of arguments. First function that we will discuss is sum. Name से ही clear है कि what my sum function will do. It will add all the numbers in a range of cells. Let me show you this practically. Suppose I am writing it here equals to sum. अब मैंने यहाँ लिखा 3 सेमीकोलन 5 सेमीकोलन 6. जितने भी मैं यहाँ पर नंबर्स लिखूंगी, these are my arguments. तो उसको क्या कर देगा, ऐड कर देगा. 4 plus 3 7, 7 plus 6 13. तो when I will press the enter key, it will show me the result. और जब आप इस सेल पर क्लिक करोगे तो जो आपने वो फॉर्मूला लगाया है, it will be shown in this here. And अगर आप वहां पर F2 की प्रेस करोगे तो वो आपको वहां पर क्या दिखाएगा, फॉर्मूला. See, I am pressing the F2 key now. ठीक है, आपने डिफरेंट वैल्यूज के बीच में क्या लगाना है, सेमीकोलन. If you are familiar with MS Excel, so there we used to write the comma here, not the semicolon. अब इसमें कुछ points हैं that we have to consider while using sum function. Following points must be considered. First one is arguments can contain numbers, range and cell reference. अभी हमने जो एग्जाम्पल किया उसमें हमने आर्ग्यूमेंट्स में क्या लिखे थे, नंबर्स. अब इसमें आपके क्या हो सकते हैं, रेंज ऑफ सेल. रेंज ऑफ सेल मीन्स अगर मैं इसको यहाँ से हटा दूं और मैं यहाँ पर कुछ नंबर्स लिख दूं विच आई वॉन्ट टू गेट एडेड, तो व्हाट आई विल राइट इक्वल्स टू सम. आपने जो उनसे रेंज की वो ऐड करने हैं, 1 से 5 तक ऐड करने हैं, तो यू हैव टू राइट द नेम ऑफ ईच सेल. मेरे फर्स्ट सेल का नेम क्या है, A1, और लास्ट वाले सेल का नेम क्या है, A5. So you have to write it here A5 and then press enter key. So इस तरीके से मैं रेंज ऑफ सेल्स को भी ऐड कर सकती हूँ. लास्ट क्या है, सेल रेफरेंस. सेल रेफरेंस मीन्स इफ हियर आई एम राइटिंग 4 और इधर मैंने लिख दिया 5, तो अगर मुझे इन 4 और 5 को ऐड करना है तो व्हाट आई हैव टू राइट इक्वल्स टू सम ब्रैकेट स्टार्ट इस सेल का नेम C5 सेमीकोलन, इस सेल का नेम क्या है, E5 ब्रैकेट क्लोज एंटर. तो 4 and 5 9. ठीक है, मैंने आपको तीनों से करके दिखाया है कि इफ यू वांट टू परफॉर्म द एडिशन, दैट दिस लिस्ट ऑफ आर्ग्यूमेंट्स, इट कैन कंटेन नंबर्स, इट कैन कंटेन योर रेंज ऑफ सेल्स और इट कैन कंटेन योर सेल रेफरेंसेस आल्सो. Next point is sum ignores any text or empty cell within a range or array. कि अगर मैं यहाँ पर कोई empty cell दे दूं, मैंने इसको blank छोड़ दिया,
या फिर मैं कोई टेक्स्ट लिख देती हूँ यहाँ पर, सपोज आई एम राइटिंग द नेम ध्रुव, ठीक है, और अब मैं सम फंक्शन अप्लाई करूं इक्वल्स टू सम और ये ब्रैकेट्स लगा दी, ठीक है। तो अब वो सिर्फ ऐड किस किस को करेगा, 45, 43 एंड 67। जो एम्प्टी सेल्स हैं या जो मैंने टेक्स्ट लिखा है उसको वो क्या कर देगा बेटा, इग्नोर। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट, Kelsey does not ignore the boolean और लॉजिक वैल्यूज इन अ सम। लॉजिकल वैल्यूज कौन सी होती हैं, योर बूलियन वैल्यूज। इसमें आपके सिर्फ 2 वैल्यूज होती हैं, आइदर ट्रू और फॉल्स। ट्रू विल बी कंसीडर्ड एज 1 एंड फॉल्स इज कंसीडर्ड एज 0। तो Kelsey उसको इग्नोर नहीं करता है। दैट मीन्स इफ आई एम राइटिंग इट हियर, लेट्स राइट इट हियर नाउ, suppose I am writing 3 true and then 4. So if I will perform the addition of these 3 true and 4, so what will be the answer, 4 plus 3 7, और true को वो क्या consider करेगा, 1, तो 7 plus 1 8 will be my answer. These are the various points which you have to consider while using the sum function. Now let's move on to the average function. Average is just like you are doing the calculating the mean in mathematics, कि sum of all the numbers divided by the total number जो आपकी values होंगी, ठीक है। तो this function returns the average of the arguments. This is the syntax of my average function, equals to, बेटा one thing you have to keep in your mind, every Excel formula must begin with the equals to sign. तो equals to average number 1 semicolon number 2 semicolon up to जितने आपने numbers add करने हो. Let's do this practically. Let me erase all this now. Yeah. Suppose I am writing 2, 4 and 5. ठीक है, या फिर मैं आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो equals to एवरेज, इन 3 का एवरेज निकालना है। तो व्हाट विल बी द एवरेज, 5 और 4 9, 9 प्लस 2 11, 11 डिवाइड बाय 3 3.6 समथिंग। सो दिस इज द फाइनल एवरेज। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, व्हाइल यूजिंग द एवरेज फंक्शन you have to consider the following points. First one is arguments can contain numbers or names, range of cell or cell references. The same thing which we have discussed in the sum function, कि if we are doing calculating the average, so we have to, it can contain numbers, names, range or cell reference. If an array or reference argument contains text or empty cells, so those values are ignored. Suppose here I am writing, let me just minimize this. I have opened my OpenOffice Kelsey. So here suppose I am writing the name Suman. So what will it do? It will ignore this text. So average, how will it calculate? 5 plus 2 7 and 7 divided by 2. 7 divided by 2 is 3.5. ठीक है, आप इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हो अगर आपको कोई मैथमेटिकल फंक्शन परफॉर्म करना है, कैलकुलेशन equals to 7 divided by 2. So it will give you the result 3.5. Now next point, if an array or argument contains text, those values are ignored. However, cells with 0 value is included. Boolean values will also be considered. Let's do this now. I am erasing this and here I am entering false. False is your Boolean value. So what it will do? 2 plus 0 plus 5, that is 7 and 7 divided by 3. तो false को वो क्या consider करेगा? 0. If I will write true here, so it will consider it as 1. तो 5 up to 7 plus 1, 8. 8 divided by 3 equals to 2.6 something. So we can include Boolean values in this and 0 will also be included. Obviously addition के time पर 0 का effect नहीं होगा, but if I have to do the
एवरेज कैलकुलेट करेंगे तो जब हम डिवाइड करेंगे तो टोटल नंबर में वो 0 वाली वैल्यू इंक्लूड होगी। माय नेक्स्ट फंक्शन इज काउंट। नेम से ही क्लियर है, इट विल काउंट द नंबर ऑफ सेल्स दैट कंटेन्स नंबर्स। इट विल काउंट ओनली द न्यूमेरिक वैल्यूज। सिर्फ जिस जिस सेल में नंबर्स होंगे वो काउंट करेगा ये। आर्ग्यूमेंट कैन कंटेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा। हम उसमें जो रेंज ऑफ सेल है उसमें तो हम लिख सकते हैं, मीन्स ट्रू फॉल्स लिख दिया या फिर हमने कोई टेक्स्ट किसी का नेम लिख दिया, बट इट विल कंसीडर ओनली द नंबर्स। लेट्स एग्जीक्यूट दिस। लेट मी इरेज दिस नाउ। तो सपोज आई एम राइटिंग 2345, इसको यहाँ पर हम लिख देते हैं सपोज नेम स्वाति, इसको एम्प्टी छोड़ देते हैं, ठीक है, और यहाँ पर एक वैल्यू और लिख देते हैं। तो नाउ आई एम डूइंग द अप्लाइंग काउंट फंक्शन। यू हैव टू सेलेक्ट द रेंज ऑफ सेल। अब इसको काउंट करो कितने हैं, 1 2 3 4। जिन जिन सेल में न्यूमेरिक वैल्यूज होंगी इट विल काउंट ओनली दोज सेल्स। टेक्स्ट वैल्यूज एंड एम्प्टी सेल्स विल बी ignored. Text, this function we are doing. Arguments that are numbers, dates, logical values are counted. Means अगर मैं यहाँ पर कोई logical value लिख दूं तो that also will be counted. Suppose here I am writing true. तो अब देखो यहाँ पर automatically क्या हो गया, 5. That means जो आपकी values हैं boolean values, that will be considered, but only text entries are ignored. Next is your count a function. बेटा कुछ functions हैं जैसे count a, min a, max a. इन सब में क्या difference रहेगा, जिस भी function के आगे a आ जाएगा that means they will consider the text values also. अगर मैं count function use करती हूँ तो it will ignore the text entries, but if I am using the count a function, it will count the number of cells that contain numbers including text also. Consider the points, text entries are also counted, empty cells are ignored, ठीक है, text with blank spaces are ignored. This line is written by mistake, let me erase this. Text entries will be considered here. Let me show you this practically now. If instead of count function we are using count a, so I am selecting this range of cell. So what will it count, 1 2 3 4 5 and 6. That means it is counting the logical values also, it is considering the text values also. But अगर मैं यहाँ count a की जगह पर count कर दूं तो what will it return, 5. तो वो जो आपकी टेक्स्ट वैल्यू है उसको कंसीडर नहीं करेगा। अगर आप यहाँ पर कोई एम्प्टी सेल लिख देते हो, सपोज एम्प्टी सेल रख दिया और अब मैं यहाँ पर यूज कर रही हूँ काउंट ए फंक्शन, ठीक है, और अब मैं रेंज को कर देती हूँ A6 से हटा करके A8, मीन्स यहाँ तक का मुझे काउंट करना है सारा, ठीक है, इसको इरेज कर देते हैं। तो नाउ आई एम प्रेसिंग द एंटर की, तो इट विल रिटर्न 7, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। दैट मीन्स जो मेरा काउंट ए फंक्शन है इट विल इंक्लूड द टेक्स्ट एंट्रीज बट एम्प्टी वैल्यूज इट विल इग्नोर। So next function is max. As it is clear with the name that this function is used to find the largest value from a given set of values. कि जो भी आपको values given होंगी, it will find the maximum value from that range. Let's do the practical of this. Suppose here values are written. आप point वाली values भी ले सकते हो. तो if I use the max function equals to max, I am selecting the range now and then bracket close. So when I will press the enter key, it will show me the maximum number. कि जो भी cell में maximum value है, it will return that. आप यहाँ पर arguments भी लिख सकते हो, 34 semicolon this. तो
when I will press the enter key, I will get 98. Now the points which is to be considered for max function is, it will consider only numeric and logical values to compute maximum. Means it can consider numeric or logical values. Logical values means your Boolean values, true or false. True will be considered as 1 and false will be considered as 0. Empty cells और text in the array are ignored. कि अगर मैं यहाँ पर कोई टेक्स्ट लिख देती हूँ, सपोज आई एम राइटिंग द नेम हियर, ठीक है, और लेट सपोज 67 की जगह लिख देते हैं, तो उसकी अपने आप वहां पर जो मैक्स फंक्शन लगाया था उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, अपडेट 45. और एक चीज देखो, अगर मैं 45 की जगह यहाँ 40 कर दूं और यहाँ 23 कर दूं, तो यहाँ पर भी 45 है तो यहाँ मैं 15 कर देती हूँ, तो जो मैंने फंक्शन लगा रखा है वहां पर आपकी वैल्यू ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगी. ये आपका हर केस में रहेगा. एडिशन में भी सपोज मैंने ये 2 नंबर्स लिखे और इन दोनों का मैं यहाँ पर सम कर रही हूँ, ठीक है, 77 आया. अगर मैं 45 की जगह 42 कर देती हूँ तो एंटर प्रेस करते ही आपने जिस सेल में फॉर्मूला लगाया है वहां पर भी वैल्यू आपकी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, अपडेट. अब नेक्स्ट इज योर मैक्स ए फंक्शन. अभी बताया था जब भी फंक्शन नेम के आगे ए आ जाए दैट मीन्स इट विल कंसीडर योर टेक्स्ट वैल्यूज ऑल्सो. तो दिस फंक्शन रिटर्न्स द लार्जेस्ट वैल्यू इन अ सेट ऑफ वैल्यूज इंक्लूडिंग द टेक्स्ट एंड लॉजिकल एंट्रीज. लॉजिकल एंट्रीज मेरा मैक्स फंक्शन भी कंसीडर करेगा, बट मैक्स ए फंक्शन विल कंसीडर द टेक्स्ट वैल्यूज ऑल्सो. Max A will consider numerical, logical and text values. Text is evaluated as 0. उसको वो क्या consider करेगा, 0. और logical values को 1 and 0. Let's do this. I am erasing this now. Let's suppose here I am writing true और यहाँ पर लिखा 0. तो if I will write max A और ये range दे दूं तो answer will be true. बिकॉज वो लॉजिकल वैल्यू को कंसीडर करेगा, ठीक है. अगर मैं यहाँ पर लिख देती हूँ टेक्स्ट और तो मिनिमम वैल्यू में ऑब्वियसली क्या आएगा, 0, बिकॉज टेक्स्ट वैल्यू इज कंसीडर्ड एज 0. और अगर मैं यहाँ पर लिख देती हूँ मैक्स फंक्शन, ए हटा देते हैं तो क्या आएगा, 0. ऑब्वियसली टेक्स्ट वैल्यू तो वो कंसीडर नहीं करेगा, बट मेरी यहाँ पर जो मिनिमम वैल्यू होगी वो आ जाएगा. Next is your same min and min a function. जैसे max function is used to count the maximum value, तो min function is used to return the minimum value. और min a function will consider the text also. Let's do this practically now. I am erasing this. अब यहाँ पर लिख देते हैं, suppose मैंने लिखा false 56 this and this. तो if I will use equals to min a और ये वाली वैल्यूज लेते हैं, देखो min a में आपका टेक्स्ट कंसीडर होगा, तो आपकी मिनिमम वैल्यू क्या है, false. false को वो क्या कंसीडर करेगा, 0. अगर मैं यहाँ पर इस सेल में एक वैल्यू और ले लूं, टेक्स्ट वैल्यू, ठीक है, तो भी आपका वो टेक्स्ट को क्या कंसीडर करेगा, 0. और 0 का मतलब ही क्या होता है, फॉल्स. अगर मैं यहाँ ट्रू कर दूं, ठीक है, तो आपका ये टेक्स्ट को कंसीडर करने पर, अगर मैं इसको हटा दूं तो आपकी वैल्यू क्या आ रही है, ट्रू, क्योंकि सबसे जो मिनिमम वैल्यू है वो कौन सी है, ट्रू. अगर मैं इस min की जगह मैक्सिमम फंक्शन लगा दूं, मैक्स a, तो इट विल रिटर्न, जस्ट अ सेकेंड, इक्वल्स टू मैक्स a. इस रेंज को सिलेक्ट करेंगे एंड देन ब्रैकेट क्लोज, तो आपका ये अकॉर्डिंगली वर्क करेगा. मैक्स फंक्शन मैक्स वैल्यू रिटर्न करेगा, मिन फंक्शन मिनिमम वैल्यू, और अगर साथ में ए आ जाएगा तो वो टेक्स्ट के साथ. नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट इज माय इफ फंक्शन. इफ फंक्शन इज यूज्ड टू रिटर्न वन ऑफ द टू वैल्यूज डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन. अब ध्यान से देखो, जो मेरा इफ फंक्शन है ये डिवाइड है मेरा 3 पार्ट्स में.
फर्स्ट पार्ट इज योर कंडीशन। अब कंडीशन में जो भी लगाऊंगी दैट विल बी आइदर ट्रू और फॉल्स। इफ दिस कंडीशन इज ट्रू तो जो मेरी वेल 1 की जगह वैल्यू होगी वो प्रिंट होगी। अगर कंडीशन फॉल्स है तो वेल 2 की जगह पर जो वैल्यू है वो प्रिंट होगी। ठीक है, तो लेट्स एग्जीक्यूट दिस। सपोज मैंने यहाँ पर वैल्यू लिखी 23 इक्वल्स टू इफ, अब मैंने कंडीशन लगाई कि A1 ग्रेटर देन 50, फिर सेमीकोलन, उसके बाद मैंने लिखा डबल कोट्स में वैल्यू लिखोगे, सिंगल कोट्स को 2 टाइम्स प्रेस नहीं करना है, शिफ्ट के साथ प्रेस करोगे डबल कोट्स। अब A1 में अगर वैल्यू ग्रेटर है तो मैंने प्रिंट करा दिया ग्रेटर देन 50 और फिर सेमीकोलन, फिर जो फॉल्स है नॉट ग्रेटर देन 50, फिर जब मैं एंटर की प्रेस करूंगी तो इट विल शो नॉट ग्रेटर देन 50। अगर मैं यहां पर लिख दूं 55, ठीक है, मैंने शायद मैसेज उल्टा प्रिंट करा दिया। ट्रू होने पर जो आपने वैल्यू प्रिंट करानी हो वो ये प्रिंट होएगी और फॉल्स होने पर ये। तो 55 मैंने क्या लिखा ग्रेटर देन 50। ठीक है, A1 में क्या वैल्यू है 55, 55 इज ग्रेटर देन 50, तो कंडीशन इज ट्रू, तो दिस वैल्यू विल प्रिंट। ठीक है, अब एक क्विकली हम एक रिपोर्ट कार्ड बनाते हैं, मार्कशीट जैसे आप लोगों की एग्जाम में बनती है। आपको क्लियर हो जाएगा उससे कि मेरा इफ फंक्शन और ये जितने फंक्शंस हमने अप्लाई किए हैं वो वर्क कैसे करते हैं। ठीक है, तो लेट मी क्विकली राइट हियर रोल नंबर, रोल नंबर, नेम, अब सिर्फ मार्क्स ले लेते हैं इंग्लिश एंड हिंदी, यहाँ पर टोटल, यहाँ पर उसका एवरेज। ठीक है, और यहाँ पर हम लिख देंगे रिजल्ट कि वो स्टूडेंट जो है वो पास है या फेल। ठीक है, ये हमने बना दिया। अब यहाँ पर मैं डेटा एंटर कर रही हूँ, रोल नंबर 1 2 3 4 एंड 5। नेम सपोज आई एम राइटिंग ध्रुव, देन लक्ष्य, देन पूजा, नेहा एंड देन सुमन। ठीक है, अब मैंने सबके नेम्स के साथ कॉरेस्पॉन्डिंग मार्क्स एंटर कर दिया आउट ऑफ 100। ठीक है, मैंने अभी 2 ही सब्जेक्ट्स के लिए हैं, आप कितने भी सब्जेक्ट्स के ले सकते हो। अब देखो अगर मुझे टोटल करना है कौन सा फंक्शन यूज होगा, सम। अब अगर मुझे फर्स्ट रोल नंबर के मार्क्स को ऐड करना है तो मुझे जस्ट क्या लिखना है C1 कॉलन D1। ठीक है, या तो आप यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हो या फिर सेल की रेंज सेलेक्ट कर सकते हो इस तरीके से। तो C2 कॉलन D2, इसके लिए क्या लिखोगे सम ब्रैकेट स्टार्ट C3 कॉलन D3। अगर आप इसको ड्रैग कर दोगे तो ये ऑटोमेटिकली सभी स्टूडेंट्स के कैलकुलेट कर देगा। ठीक है, अब अगर मुझे बाद में पता लगा कि लक्ष्य के मार्क्स हिंदी में या इंग्लिश में कम हो गए, 45 की जगह 40 हो गए, तो ध्यान से देखना 40 करते ही वो सम आपका ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये मेरी हेडर रो है। उसके बाद एवरेज कैलकुलेट करने के लिए वी यूज द एवरेज फंक्शन। इन दोनों की हमने क्या कैलकुलेट कर दी एवरेज, फिर आप इसको क्या कर दोगे ड्रैग। ठीक है, अब अगर मैं किसी के मार्क्स कम कर दूं, सपोज मैंने यहाँ पर 2 लिख दिया, ठीक है, तो आपका सम और एवरेज ऑटोमेटिकली उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट हो जाएगी। अब मैं इफ फंक्शन लगा रही हूँ, ध्यान से देखना, इक्वल्स टू इफ कि अगर मेरा जो रिजल्ट है मींस जो एवरेज परसेंटेज है अगर वो लेस देन क्या है 35, अगर किसी स्टूडेंट के मार्क्स 35 से कम है तो वो क्या हो जाएगा वहां पर फेल, अदरवाइज वो क्या हो जाएगा पास। इस तरीके से हम इफ फंक्शन को अपना रियल लाइफ में यूज कर सकते हैं कि अब मैंने अपना किस पर लगाया एवरेज पर। एवरेज वाले सेल का नेम लिखोगे। ठीक है, एवरेज वाले सेल का नेम क्या है F2, जस्ट अ सेकेंड, इक्वल्स टू इफ F2 ग्रेटर देन या लेस देन, कोई भी कंडीशन लगा दो, लेस देन अगर मैं लिख रही हूँ 35
5। तो अगर लेस देन 35 है तो वो बच्चा स्टूडेंट क्या होगा, फेल, और अदरवाइज क्या हो जाएगा, पास। अब मैं एंटर प्रेस करूंगी, इसके 35 अबव है तो क्या आ जाएगा, पास। अब मैं इसको ड्रैग करूंगी, ठीक है। तो अब देखो जिसके भी मार्क्स 35 से बिलो हैं वो ऑटोमेटिकली क्या हो गया आपका, फेल। अगर मैं किसी के चेंज कर दूं, 25 कर दें, तो वो आपका 35 आ गया, तो वो आपका क्या हो जाएगा, पास। इस तरीके से आपके अपने हमने एक्सेल फंक्शंस को डिस्कस किया। आई होप आपके कंसेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। If you are having any doubt, you can write it in the comment section. If you like my video, do press the like button, share your views in the comment section, and don't forget to subscribe my channel and press the bell icon to get the updates of my upcoming videos. Till then, keep watching, keep studying.